ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक। ठीक, आई थिंक यू हैव टू फिक्स योर माइक। आम, अब बेहतर है। जी जी, अब बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। जी सर, I would request you to tell us a little bit about Epic, Sir Irfan. कि क्या thought process था before creating such an amazing platform? जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, घर में गेस्ट आए हुए थे तो आई हैड टू अटेंड टू देम। जी। सो एपेक की स्टोरी तकरीबन 1 साल पुरानी है। For those who are familiar with what ETL is and what it aims to do, it's basically the target for ETL is कि हम स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो कि कम्युनिटी बेस्ड हो और उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एलिवेट करे इन अ कम्युनिटी सेटअप। सो तकरीबन 1 साल पहले जब बहुत ज़्यादा और अगेन हम चूँकि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आई थॉट के prompt engineering alone is going to be the next big thing, because when I graduated and joined the industry back in 2001, Google had recently launched this search engine, and it was basically revolutionary in the way we were doing stuff. Like Google से पहले और Google के बाद, I can still remember the struggles we had with trying to find answers to very simple programming related questions. But then when Google came in, it all suddenly changed for us. And I think we are in that watershed moment again where LLMs and agentic experiences are going to be transforming the way we are building software, and not only building software, doing anything in our life, right? And the way you can basically command intelligence in the years to come is to buy is to develop this ability in you where you are basically thinking before you are actually acting. तो इस पूरे के पूरे कंपटीशन का कॉन्सेप्ट भी यही था, और जो हमने कॉग्निटिव प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क को डिजाइन भी इसी सोच के तहत किया था कि हम बच्चों के अंदर इस रियलाइजेशन को इंस्टिल करें कि यार देर इज दिस टूल अवेलेबल कि आपके पास आपके थिंकिंग असिस्टेंट्स हैं जिनसे आप काम करवा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव टू थिंक एनी मोर, राइट? The more you think about how to command intelligence, the better you are going to get the outputs. And that basically gave uh, uh, birth to this idea. As a matter of fact, I was reading a LinkedIn post by someone कि 2 साल पहले सिंगापुर में शायद एक इसी तरीके का फिजिकल टूर्नामेंट हुआ था अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड आई थॉट why not use ETL as a platform and do an online event? और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हेल्प्ड एग्जीक्यूटिंग इट, एंड ऑब्वियसली ऑल द पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने इसके ऊपर बड़े फोकस के साथ कंट्रीब्यूट किया। Thank you so much, थैंक यू sir. सो मच सर। Sir Shakil, would you like to say something? आपने mic unmute किया था। जी नहीं, मैं बस शायद वैसे किया था, लेकिन आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू इरफान भाई फॉर giving birth to this idea, and alhamdulillah team rallying behind him. और आज हम is kind of history now, this first all Pakistan competition, and we are actually thinking beyond that, and inshallah in few months we'll be coming up with another platform, hopefully talking about agentic competitions, agentic solutions competition in Pakistan. And the goal is कि हम देखना चाहते हैं कि कोई अगर पाकिस्तान का नाम ले तो इनोवेशन उसके जहन में आए, सॉल्यूशंस जहन में आए, टेक्नोलॉजी जहन में आए, टेक गुरुज, टेक इवेंजलिस्ट, इस तरह के टर्म्स, थॉट लीडर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के अल्फाज इंशाल्लाह जो भी चाहे वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, दुनिया में कहीं भी अगर पाकिस्तान का कोई नाम ले तो पाकिस्तान शुड बी इक्विवेलेंट टू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी,
solution providing, brilliance, high performing, wonderful work ethics. These are the terms that we want to see in Pakistan, and ETL, empowerment through learning. The mission is कि जो भी ETL के हम लोग जो हमने स्टार्ट किया और फिर बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं in last 1.5 years within Pakistan and outside of Pakistan, and many of the people are 20, 25, 30 years of industry experience, and we are basically trying to transfer that work ethics and quality and the definition of innovation and technical capabilities, high-tech, cutting-edge skills. The transfer of that to Pakistan and Pakistan's youth is what we are trying to do. So, inshallah, love to see what our 5 winners are going to say about their experience with APEC, All Pakistan Prompt Engineering Competition. Back to you, Laiba. Thank you so much, sir. So basically मैं थोड़ा agenda भी explain कर देती हूँ. What was the purpose of this meeting? So first of all, we'll discuss about the experience of the top 5 as well, like उनका क्या feedback है, what are the improvements that we can do in our upcoming sessions. So starting from Imran, I think if you can introduce yourself, what are you doing right now? किस university से आपने graduation की है? What was your experience and everything? Hello, Assalamualaikum, and good वालेकुम evening अस्सलाम. to everybody. I hope I'm audible to everybody. Yes, you're audible, but your voice is a bit Actually, low. Okay. Am I clear now? Hello. It's a bit. जी इमरान, आप your बात voice is करते जाएं, बात जी आप करते जाएं. बोलते जाएं, बट आपके पास थोड़ी सी कम है, बट आप स्टार्ट करें. Oh, okay. I'll try to speak louder. Okay. My full name is Mohammed Imran Mia. Currently, मैं अपना MS pursue कर रहा हूँ in the field of data science from Punjab University PUCIT department. इससे पहले एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ और मैं बस लास्ट ईयर ही मुझे हुआ कि आई हैव टू अगेन स्टडी बिकॉज दुनिया का जो एजुकेशन वाइज काफ़ी दुनिया जो है वो प्रोग्रेस कर रही है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेस. और मेरी जो बेस डिग्री थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम कॉमसेट्स. दैट वाज लाइक 8-9 years ago. उसके बाद मैं प्रोफेशनली एक कंपनी में जॉब कर रहा था अब्रॉड. तो what motivated me to come into this field is कि ये जो कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशली AI एंड जो डेटा साइंसेज है ये इसमें मुझे बहुत पोटेंशियल लगा. दैट्स व्हाई आई चूज के मैं अपनी जॉब छोड़ के वापस आके इस फील्ड को परस्यू करूं. और बस इन द कोर्स ऑफ दिस मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा था इधर उधर. एंड आई थिंक सो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्होंने एक पोस्ट किया था फॉर दिस ETL कंपटीशन. तो उस कंपटीशन के लिए मुझे पहले बिल्कुल भी ज़्यादा आइडिया नहीं था अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. बट एज सून एज आई सब्सक्राइब करेंगे रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तो बिफोर द कंपटीशन विच रियली हेल्प मी अलॉट के मैं इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ज़रा क्लोजली उसको देखूं, उसके अंदर प्रैक्टिस करूं अपने आप को और ट्राई टू शार्पन अप माय स्किल्स फॉर दिस. सो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगा और वहाँ से कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया. तो वहाँ पे डेली की 3 एक्सरसाइजेज आई गेस मैंने की थी उसकी. तो उसके बाद देन द कंपटीशन जिसमें लाइक 2600 2700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. तो उसके अंदर मैंने भी पार्टिसिपेटेड थे. तो उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा एक तो इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ा के मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइंस. मतलब मैं इससे पहले ऐसे समझना नहीं था. मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में GPTs वगैरह तो हम यूज़ करते हैं लेकिन इस
इमरान, आई थिंक आपके एक तो कनेक्शन का थोड़ा सा इशू हो रहा है और थोड़ा टाइमिंग भी हमारे पास चैलेंज है. वी आर टाइम कंस्ट्रेंट. लाइबा, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज? यस यस, श्योर श्योर श्योर. सो हेलो. एसन, ओवर टू यू. आप मुझे बताएं, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, क्या करें आजकल आप, आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स दिस कंपटीशन, हु टोल्ड यू अबाउट इट? हेलो. एसन, कैन यू हियर मी? आप म्यूट पर हैं. Assalamu alaikum. वालेकुम Can अस्सलाम. I am audible? यस यस, यू आर ऑडिबल. So first of all, thank you so much for having me. So मैं actually myself Hassan Khizar और मैं यूटी टेक्सला में फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ. सो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी उस टाइम तो कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या करना है. बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक 1 year मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी थी. थैंक्स टू द सीनियर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी. उनकी तरफ से बहुत गाइडेंस थी, कोर्सेज वो प्रोवाइड कर देते थे. देन मैंने सेल्फ बेस पे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की. तो सेकंड ईयर में मैंने नेक्सिस के साथ जब मैं इंटर्नशिप की तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला. आई थिंक कि इंडस्ट्री से कैसे काम करना है, किस तरह प्रोजेक्ट्स उठाने हैं. तो फिर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग शुरू की अराउंड लाइक 1.5 year. स्टार्टिंग विद जो मेरी मेन मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता था. एंड देन आफ्टर मैं अभी थर्ड ईयर मैंने जब फिनिश किया तो फिर मैंने कादरी ग्रुप के साथ इंटर्नशिप की. तो वहाँ मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा. क्योंकि वहाँ पे मोस्टली काम ऑटोमेशन का था. तो पाइथन बहुत यूज़ हुई, डेटा साइंस के मॉडल्स किस तरह यूज़ करने हैं. तो फिर वहाँ से मुझे एक न्यू एक्सपीरियंस मिला क्योंकि वो एक 2 month का फुल एक्सपीरियंस था और एक्सपोजर इतना ज़्यादा था. और फील्ड भी अच्छी थी. तो वहाँ से फिर मेरा जो है इस तरफ इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर मैंने स्टार्ट किए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज फ्रॉम स्पेशली कोर्सेरा अंडर DLSCI प्रोग्राम. फिर उसमें डिफरेंट कोर्सेज मैंने और भी किए जिससे मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में पैदा हुआ. हैकाथॉन का मुझे आइडिया था. पार्टिसिपेशन भी मैंने काफ़ी हैकाथॉन्स में की है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स जो हाईटेक के अंदर यूजली हुए हैं, मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट किया है. इंटरनेशनल लेवल पे मैंने डेव पोस्ट के दो, एक जेमिनाई का और एक केगल का रिसर्च पे उसमें पार्टिसिपेशन की. एज सच हम फाइनल राउंड तक तो चले जाते बट उससे आगे नहीं जा पाते. आई डोंट नो, शायद हमारे आइडियाज जो से होते हैं उनको मजीद मैच्योर होने की ज़रूरत होती है एट दैट टाइम. और इस कंपटीशन का जब मुझे पता चला तो ग्रुप में तो मैं था ही एम्बेसडर एज. तो वहां से फिर मैंने अप्लाई कर दिया और क्योंकि मेरे पेपर पैरेलल में चल रहे थे तो एक माइंड था कि यार हो गया तो चले ठीक है कर लेंगे, अगर ना हुआ तो नहीं. बट आफ्टर सम टाइम लाइक क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब इतनी नरिश कर ली है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्रॉम्प्ट्स अपने पास बना के रखूँ फॉर सर्टन सिचुएशंस जो बार बार रिपीट होती हैं. तो यूजली मैंने NA10 के ऊपर ऐसे मॉडल्स ट्रेन किए हैं जो मुझे बार बार जो से हैं बार बार प्रॉम्प्ट के लिए ना सर्टन सिचुएशंस में वो हेल्प करते हैं. तो उसी की तरफ मैं कोशिश होती है. और एज फार एज एक्सपीरियंस, एपेक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. स्पेशली सेकेंड राउंड टीम बहुत सपोर्टिव रही थ्रू आउट. काफ़ी उसमें कंस्ट्रेंट्स थे थ्रू आउट स्पेशली सेकेंड राउंड्स के अंदर. बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया और जिस तरह स्पेशली कंसिडरेशन की गई कि उसका और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. पहले राउंड की बात करूं, सेकंड राउंड की बात करूं, ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड काफ़ी लर्निंग हुई, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नई नई भी सीखी हैं. स्पेशली कुछ कॉन्सेप्ट जो शायद मुझे पहले नहीं पता था वो मैंने नए सीखे. सो ओवरऑल ग्रेट, सो मच थैंक यू सो मच फॉर team, organizers, sponsors, judges, everyone included in this competition. And I have a great experience. Thank you so much. Thank you, Esan. And just tell me one thing, कि obviously we had two rounds, like first and second. So आपको कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगा, क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, एंड कैसा था आपका उसमें एक्सपीरियंस, एंड हाउ वुड यू रिजॉल्व इट?
So first round, I go with like preemptive techniques जो मेरी प्री बिल्ड थी. So वो इतना चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि उसमें मेरी थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी. बट सेकंड राउंड क्योंकि स्पेशली मेरे पेपर्स थे और उसके साथ मेरा था कि नहीं, मैंने प्रिपेयर करना ही करना है. तो उसमें मैं अपने जो स्पेसिफिकली जैसे फर्स्ट राउंड के सिनेरियोस हमें गिवन थे, तो मेरा था कि अगर मैं इन सिनेरियोस के थोड़ा सा इनको स्कोप को अपने वाइड करूँ और कुछ इस तरह की सिचुएशंस ऑलरेडी प्री बिल्ड अपने माइंड पे ही लेके चलूं कि हाँ किस तरह उनको अज्यूम करके उसको सॉल्व करना शुरू करूं, तो देन क्या सिनेरियोस बनते हैं. तो उसके काफी चैलेंजेस स्टार्ट में तो मुझे लगा कि यार इट काइंट बी टफ हो सकता है, बट मैंने कहा कि नहीं. उसमें फिर मैंने काफी प्रिपरेशन की, उसकी प्री बिल्ड्स मैंने प्रॉम्प्ट जो मैंने ड्यूरिंग कंपटीशन भी मैंने क्योंकि क्लॉड जोन्स है वो ज़्यादा एक्सेस देता नहीं है, बट गूगल की करंटली जो 1 ईयर स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आपको चैट लिमिट नहीं है. तो वो मैं दोनों जोन्स हैं, फिर मैंने गूगल के जो काफ़ी यूज़ किया उसके प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट उसमें मैंने ऑलरेडी बना के रखे, ताकि जो मुझे ड्यूरिंग कंपटीशन मुझे लगा कि मेरी हेल्प कर सकते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ मैंने अगर जो विजुअलाइजेशन करनी है या मैंने रैशनल अपना डेवलप करना है तो वो किस तरह मुझे हेल्प कर सकते हैं. तो राउंड 2 में लर्निंग भी ज्यादा थी, थिंकिंग बहुत ज्यादा शामिल थी. प्री प्रोसेस ड्यूरिंग कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन अपने प्रॉम्प्ट को एनालाइज करना कि वेदर इज अप टू द मार्क, तो उसमें थिंकिंग भी ज्यादा थी और लर्निंग ऑब्वियसली उसकी वजह से लर्निंग बहुत ज्यादा थी. तो राउंड 2 में काफी मजा भी आया, बट वो एट द सेम टाइम काफी टफ भी था मेरे लिए. जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा ना हमने ट्राई करना है कि हम अपने आंसर्स को थोड़ा सा प्रिसाइज रखें, बिकॉज काफी सारे लोग हैं और हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। सही है। अच्छा, आई थिंक मुताहिर, हम ना आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो डू यू वांट टू टेक इट ओवर फ्रॉम इट? बिल्कुल, आई वुड लाइक टू आस्क ऐसा ना क्वेश्चन. ऐसे आपको कंपटीशन के बारे में किस तरह पता चला था? मुझे जो है ईटीएल के जो इन्वेस्टर ग्रुप है वहां से पता चला था. जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है. आई विल कम बैक टू योर फाइनल क्वेश्चन. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड participant and winner, Mohammed Mehdi. Mehdi, you're on call. Alaikum. Yes, I'm called. Walaikum Assalam, Mehdi. Just a short introduction and they'll ask a few questions. ठीक है Mehdi? So I'm a sixth semester student at FAST. I'm a CS student too. An introduction. I consider myself an AI engineer. मैं solutions architect करता हूँ. I'm generally a solo dev, लेकिन कभी-कभी teams में भी काम करता हूँ. To give I build अभी एक recent मेरा project जो ongoing and hopefully released onto Play Store very soon is called Eyes, and it's a Mastodon-based news update app. So basically, मुझे as someone who's like deeply interested in politics as well, geopolitics and politics in general, तो I find it कि अगर एक centralized hub हो जहाँ पर आपको constant journalist verified updates आ रही हों, I feel like that would be a very big help in this information-centric world. तो उसके लिए I decided to take on this passion project, and I hope मैं इंशाल्लाह soon उसको ख़त्म कर लूँगा. And I think that's about it from my side. Zabardast, Mehdi. A question from you. How would you Mhm. describe your overall experience throughout APEC from level 1 to level 2 till winning? I think firstly तो ये कि your website was alhamdulillah very like did not have any issues with it. Generally कभी-कभी होता है कि when you're working online or competing online तो you come across problems where you're trying to submit something and it doesn't work या फिर things aren't loading on time. But I feel like this was not an issue at all. And as for like the round 2 as well, I feel like both smooth tha, on time tha, everyone was there, and there weren't any उस तरह के issues जो मेरे like process के बीच में तंग करें या कुछ. I feel like बहुत अच्छा experience था मेरा, and I don't have any complaints with it, I think. Zabardast, Zabardast. You mentioned your interest in technical stuff, your projects that you mentioned, right? तो मेरा आपसे एक और question है. Which round या task on APEC did you find the most challenging? In general वैसे तो because of I feel like एक term है vibe coding, which I feel like most technical people right now would know of. It's like when you're using a lot of AI to
go through your projects. Like basically logic वगैरह is your own, but then you don't have to go through every part of the coding process manually anymore. So I feel like due to that, I've been prompting for a very long time. और फॉर्मली तो मैंने कोई भी रिसर्च इस पे नहीं की थी. इनफॉर्मल रिसर्चेस एंड देन एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एंड देन लुकिंग एट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो रैंडमली पॉपअप होते हैं सोशल मीडिया एक्सेट्रा. आई हैव काइंड ऑफ बिल्ट अ फ्यू फ्रेमवर्क्स जो डिफरेंट सिनेरियोज के लिए मैं यूज़ करता हूँ. तो मुझे जनरली इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द कॉम्पिटिशन इटसेल्फ इतना डिफिकल्ट नहीं कुछ लगा था. द ओनली थिंग वाज कि आई थिंक सेकंड राउंड में थोड़ा पैनिक हो गया था because of factors like I know someone is evaluating me on spot and stuff. I think that was the only difficulty I faced. Zabardast, Zabardast. Let's move on to our next participant. Ibrahim, can you please introduce yourself? By the way, guys, Ibrahim is the second position holder at Epic, and I would request him to introduce himself and which university or institute he's from. Am I audible, miss? Yes, you're audible. Assalamu alaikum, everyone. I'm Ibrahim Samad. I'm from Karachi. I'm 13 years old. मैं बेसिकली एजेंटिक एआई डेवलपर हूँ और मेरा मिशन है कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करूँ. मैंने टेक्नोलॉजी से एक ऐप बनाई थी जो जेनेरिक केयर है, जो पाकिस्तान की फर्स्ट हेल्थ केयर डोनेशन मोबाइल ऐप है. ये रिकग्नाइज नेशनली बाय एचपीएल पाशा आईसीटी अवार्ड्स 2025. उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और मेरे प्रोजेक्ट को ट्रॉफी मिली थी. इसके बाद मेरा ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी ड्यूटी कंपटीशन, मुझे यहाँ से फर्स्ट पोजीशन मिली थी. इसके अलावा मैं यूनाइटेड नेशंस का टॉप फाइनलिस्ट हूँ और मैं इसके अलावा नासा का एम्बेसडर भी हूँ और मैं ग्लोबल नॉमिनी भी हूँ. और रिसेंटली अभी एक मुस्तकबिल का एआई हैकाथॉन हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेप एयरफोर्स आर्मी बेस में हुआ था, तो उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन में लाया था. और मैं बेसिकली एनईडी में यूटेक इंस्टीट्यूट से हूँ, यूटेक डिजिटल एजुकेशन. तो मैं वहाँ पे सीनियर इंस्ट्रक्टर भी हूँ, सीनियर एम्बेसडर भी हूँ. तो मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कोर्सेज भी करवाया हूँ, जैसे कि एजेंटिक एआई, पाइथन, जेन एआई. और पीआईसी में मैं असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हूँ और गवर्नर हाउस की मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ. इसमें मैं एजेंटिक एआई टीच करता हूँ. Awesome, awesome. So since you were not a part of any of the ETL's group, so I'm very curious to know कि आपको ETL के बारे में और एपिक के बारे में खास तौर पे कैसे पता चला था? मिस, ये मुझे फेसबुक से पता चला था, सोशल मीडिया. और कौन सा चैलेंज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इजी मुझे लेवल 2 का लगा. लेवल 2 की जो फ्रॉम माय साइड मेरे पास जो चैलेंज आया था, लेवल 2 का इमेज बड़ी, उसमें ज्यादा क्लूज थे और वो काफी मुझे इजी भी लगा. लेवल 1 में इतने क्लूज नहीं थे. और बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं ना मशीन लर्निंग का मुझे काफी अच्छा शौक है, तो जेंटी क्या है और मशीन लर्निंग में करते रहता हूँ. तो उसके अंदर ये मैंने कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहीं मैंने सीखी नहीं थी. मैंने हंड्रेड्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स और इमेजेस मैं अपने एमएल मॉडल को देते रहता हूँ, तो मुझे आदत हो गई थी. तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ईटीएल में टेस्ट करता हूँ कि मेरी मशीन लर्निंग स्किल्स कैसी हैं और मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी हैं, कि मैं बेसिकली मशीन को मैं कैसा प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. And what would be your feedback regarding Epic and the whole operations? यस, तो मुझे एपेक का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी. ईटीएल का भी बहुत बड़ा शुक्रिया है. और मेरा इसमें बेसिकली मैंने अपनी जो स्किल्स थी मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, मैंने इसमें यहाँ पे टेस्ट करी. और ये जो लेवल 1 और लेवल 2 था, ये बहुत अच्छा टेस्ट था. इसमें आपको सारे सीओटी, थ्री ऑफ थॉट, इसमें आपके प्रूफ ऑफ थॉट, इसमें जितनी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कैसे बेटर कर सकते हैं, जो भी लेवल 1 और लेवल 2 में था, वो काफी अच्छे एक तरीके से टेस्ट था कि आप अपनी मेरी स्किल्स की टेस्ट हुई. और मुझे जो लेवल 1 और लेवल 2 की जो इमेजेस भी थी, इमेजेस में भी इतने क्लू था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था. तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि आप आपके माइंड पे रिलाई करेंगे कि ये सिचुएशन आप खुद बनाएंगे, आप स्टोरी खुद डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करे और सिस्टम को सही पाथ पे करना है. हम ना मेरे एक क्वेश्चन है इब्राहिम से. जी जी सर, यू मोस्ट एज वेलकम. मैटर ऑफ फैक्ट दो है. इब्राहिम, आप कौन सी क्लास में, विच सर ईयर मैं आर यू? 8th स्टैंडर्ड में हूँ. सॉरी, किसमें? सर 8th स्टैंडर्ड.
अच्छा अच्छा, सो ओ लेवल्स अभी स्टार्ट किए, राइट? यस सर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सो इफ यू वर, सो आपने कहा कि यू आर एन इंस्ट्रक्टर एज वेल, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। इफ यू वर टू सॉर्ट ऑफ, अगर आप किसी को, इफ यू वर अ जज ऑफ दिस कंपटीशन, आप किस तरीके से और क्या चीज़ इंप्रूव करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर? जस्ट हाई लेवल थॉट अबाउट इट, कि आप, होता है ना हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। सर मुझे जो सबसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, तो मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता बेसिकली थोड़ा सा चेन ऑफ थॉट पे, क्योंकि फ्रॉम माय साइड एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मशीन लर्निंग में ना सीओटी ज्यादा आती है। तो प्रॉम्प्ट अगर आप सिस्टम को दे रहे होते हैं, मैंने लिनक्स पे भी काम करा है, विंडोज पे भी करा है, मैकओएस पे भी करा है, एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने काफी हैंडल करे हुए हैं। तो मैंने ये ज्यादातर देखा है कि उनके अंदर चेन ऑफ थॉट ज्यादा आता है, क्योंकि वो बेसिकली वो तो मेन ही चीज हो जाती है कि ना एआई को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं तो इम्प्रूव करने के थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सीओटी डाल देता ऑन लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर। लेवल 1 के अंदर सीओटी काफी आसान था और बिल्कुल लेवल 1 के अंदर मैच भी करता। लेवल 2 में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सीओटी थोड़ा हार्डर हो सकता था, जिसकी वजह से आप फिर आपके ऊपर रिलाय होगा कि आप कैसे मशीन को कितने अच्छा ट्रेन कर सकते हैं और आपकी एक्सपर्टीज कितनी अच्छी है किसी को इंस्ट्रक्ट करने में। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई थिंक आपकी इस एक्सपीरियंस से ईटीएल फायदा भी उठा सकती है। विल प्रॉब्ली इनवाइट यू टू डू अ सेशन ऑन ईटीएल समटाइम। इंशाल्लाह विल कीप इन टच। नाइस वर्क, माशाल्लाह। थैंक यू सर। जी, we'll head on to the next participant, Mamla. Thank you, Amna. Assalamu alaikum, Manahil. Can you hear me? Yes, walaikum salam. कैसे हैं मनाहिल आप? Many many congratulations to you. Basically, you are the top Thank you. first position. Thank you. So, मनाहिल बताएं और थोड़ा सा अपने मनाहिल बारे जो में। है वो वीडियो भी ऑन कर सकती हैं अगर उनको जी मूड मनाहिल, हो। if you want to, so please. इस टाइम मैंने कर सकती हूँ, सिग्नल का इशू है तो बहुत डिस्टॉर्शन होगी। If it's कोई okay. मसला नहीं। ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो मनाहिल बताएं किस यूनिवर्सिटी की आप ग्रेजुएट हैं, क्या करी आजकल, किस सेमेस्टर में? जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। First of all, I want to thank you to ETL Online for arranging this competition and providing us with such a valuable learning platform. I'm from International Islamic University, Islamabad, and I'm pursuing BS in software engineering. I'm currently in 6th semester. मुझे इस कंपटीशन का पता ETL ऑनलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला था, क्योंकि मैं एम्बेसडर्स के ग्रुप में ऐड हूँ और हमारी HEDM सलमा इम्तियाज, उन्होंने भी हम सबको मोटिवेट किया कि वी शुड जॉइन दिस कंपटीशन। गुड। So सो I thought, मना yes, बताएं। so I thought this would be a good learning experience और हम फ्री भी थे तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली यू परफॉर्म रियली वेल, बट स्टिल आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, कि बिकॉज वी हैव 2 राउंड, सो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें फर्स्ट राउंड में, बिकॉज आई सॉ के आप, I think you were on 5th or 6th position, but in the level 2 you performed really well and you were on top basically first position. So इसका मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपके लिए क्या चैलेंजिंग था, क्या चीज़ें आपको ब्लॉकर फील हुए इन द लेवल 1, एंड क्या चीज़ें चैलेंजिंग थी आपके लिए, किस तरह से आपने सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया, बिकॉज लेवल 2 में यू वर ऑन द फर्स्ट पोजीशन, सो दैट इज द रीजन आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि किस तरह से रहा आपका एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे दोनों राउंड्स अच्छे लगे, लेकिन मुझे राउंड में ज़्यादा आसान लगा और पसंद आया, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और लॉजिक की ज़्यादा हमारे पास मार्जिन था और टाइम भी बहुत था, और उसको अंडरस्टैंड करने में स्ट्रक्चर का हमारे पास थिंकिंग प्रोसेस अपना पूरा बनाने में टाइम था। और राउंड 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग था और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और डीप था। इस राउंड में सिर्फ आंसर नहीं, रीजनिंग और कॉन्स्ट्रेंट और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा मैटर करती थी, और इसमें रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम्स को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ओवर प्रॉम्प्टिंग ना हो, कभी कभी लगता था कि मतलब ज़्यादा ना लिख दें, और क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेंस से। और अनदर चैलेंज इन लेवल 2 वाज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉम्प्ट को सोचना, रिफाइन करना और फिर रीसेट करना थोड़ा demanding होता है। ओवरऑल ये चैलेंजेस लर्निंग का हिस्सा थे और इसी वजह से एक्सपीरियंस और वैल्यूबल बन गया।
ठीक है। सो मनाहिर, इससे पहले भी आपने किसी लाइक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, और दिस दिस वाज योर फर्स्ट कॉम्पिटिशन यू पार्टिसिपेटेड? नो, इससे पहले नहीं किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और प्रिपरेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया था? सो हाउ डिड यू प्रिपेयर? प्रिपरेशन के लिए ETL की वेबसाइट पे बहुत से हमारे पास वीडियोस थी, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स थे, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। ठीक है। शकील सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मनाहिल? मेरे पहले तो मैं इनको दाद दूंगा, मनाहिल को और बाकी सारे विनर्स को। माशाल्लाह, एवरीवन डिड awesome job. Manahil, एक क्वेश्चन एंड देन I'll talk about ETL and our future plans. तो आपको कैसा लग रहा है? आपने अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स वगैरह को बताया तो क्या फीलिंग्स थी? नाहिल? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू है। जी जी, मैंने पूछा कि आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप नेशन वाइड कंपटीशन की विनर हैं, पूरे पाकिस्तान के कंपटीशन की। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मनाया। अब आ रही है सर? हेलो सर, एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी। सबसे पहले तो ऑनेस्टली मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं जीतूंगी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप 20 में आ गई। मैंने टॉप 20 में आने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद भी मुझे लगता था कि टॉप 5 में आना तो बहुत मुश्किल है, 50 आ जाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी इट वाज ऑनेस्टली अ सरप्राइज, और फर्स्ट आना अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। और पेरेंट्स तो पता ही है आपको कि बहुत खुश होते हैं। अगर मैं टॉप 20 में आ गई थी, वो इसी बात पे बहुत खुश थे। ज़बरदस्त, They're सही है। also very proud of me. Excellent. So congratulations, Minahil, Ibrahim, Mehdi, Ahsan, Imran. Mashallah, really great to see you guys winning this competition. ये हमारा पहला और ये पाकिस्तान का पहला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंपटीशन है, और इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बना है और पाकिस्तानियों ने बनाया और स्टूडेंट्स ने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, प्राइमरली फैस के वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एंड दे डिड रिमार्केबल जॉब, अमेजिंग वर्क। और आई एम इन द US, और मैं आई हैव responsibility of delivering global projects to many different clients in US and other parts of the world. So I can tell you, I can vouch that this platform was nothing less than any world class platform that anybody else could have built. So kudos to mashallah, our development team, our main solution architect Irfan Bhai, who is the also the co-founder along with me of ETL, Empowerment Through Learning. और द प्राइड मोमेंट इज के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस, लिटिल बिट ऑफ nudging, and we can do miracles, and we will keep on doing miracles, inshallah. We will be coming up with some more ideas how we can create, develop, build some world class competition platforms in the agentic world, in the inshallah IoT industry 4.0 kind of solution development related competition. So those things will be coming in the future, and we will be looking forward to seeing a lot more students joining these platforms, showcasing their skills, their capabilities. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी कंपनी, द CEO, आई शेयर्ड दिस न्यूज़ विद हिम। तो उसने कल मुझे कहा कि यार इसमें से जो 2-3 जो अच्छे बच्चे हैं उनको हायर कर लो यार पाकिस्तान में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई ऑलरेडी हैव गिवन the list of the top 20 to some of the companies who might be reaching out to you. Great opportunity to the winners, all the top 20. So look forward to people reaching out to you. So that's the kind of the exposure ETL is bringing to the youth of Pakistan, alhamdulillah. अच्छा, किसी का कोई question before I have one very important thing to share, but any question, comment from the audience for the winners? Sir,
जी सर मैंने ग्रुप में सुना था कि इस्लामाबाद में Feb 3 को हेल्ड होगा एक इवेंट, तो वो सर ऑफिशियल है? डेट जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन यस इंशाल्लाह इधर सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ February वी आर प्लानिंग टू होस्ट our winners in Islamabad. We will share the venue, we'll share the date and time, but we're trying our level best to have in-person award ceremony, inshallah. थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई कमेंट क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज मैं शकील भाई कहना चाहूंगा। जी सिर्फ 2 मिनट, और अगर मैं 2 मिनट से ज्यादा लूंगा आप मुझे रोक दीजिएगा। मैंने शुरू कर दी। आ, वो ये है कि when we were designing this competition, तो एक चीज जो हम ईटीएल का जो इथॉस है वो ये है कि कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव जिसके अंदर किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी एक बंदे का नाम ना हो। सो वी वांटेड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर जजमेंट फ्रेमवर्क एज वेल, कि यार जिस तरीके से हमारी जजिंग होगी इस पूरे के पूरे कंपटीशन में वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो हमने राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वी मेड श्योर कि यार चूंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, तो एक ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस आर गोइंग टू बी रिप्लेसिंग, सॉरी, एजेंट्स आर गोइंग टू बी और एआई इज गोइंग टू बी रिप्लेसिंग ह्यूमंस, बट वी वांटेड टू मेक श्योर कि यार जो शुरू में इंशाल्लाह सबमिशंस आनी है इतनी सैकड़ों की तादाद में, इट वुड बी ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द जजेस टू बेसिकली mark those, right? So we went with an agentic frame of mind while designing the competition के यार पहला जो लेवल है वो हम एआई के थ्रू ही जज करवाएं, और फिर ऑब्वियसली सेकंड जो था लेवल वो इस वजह से ह्यूमन जजेस के साथ रखा गया ताकि सम पीपल मे गेट एन अनफेयर एडवांटेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह the framework or the approach we adopted which resulted in the top 5 actually proved the point कि जी हमारी जो लेवल 1 की भी सिलेक्शन जो कि प्योरली ऑटोमेटेड सिलेक्शन थी, प्योरली एलएलएम बेस्ड सिलेक्शन थी, एआई ने ही आप लोगों को एवेलुएट किया था, और जो टॉप 5 हैं उनकी जो कैपेबिलिटी और जो उनकी स्किल सेट को जब ह्यूमन जजेस ने भी एवेलुएट किया तो उनकी तरफ से भी यही फीडबैक आया कि यार ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मेजॉरिटी ने जिसे कहते हैं ना एक अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी की बेस के ऊपर ही अच्छी प्रॉम्प्ट्स लिख के इस कंपटीशन के अंदर आगे आए हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन के purely from a transparency perspective, ETL right from the day one, चूंकि एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारा जो जजमेंट का क्राइटेरिया है किसी किस्म का ना इसके अंदर फेवरेटिज्म ना हो। हम क्रिकेट खेलते थे तो वो जो टीम टूर्नामेंट करवाती थी ना हमेशा फाइनल में पहुंच जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ very well planned competition, and I personally want to thank all the team and all the judges who actually participated in making this a success for us. जी बिल्कुल। और मेरा क्वेश्चन बल्कि रिक्वेस्ट है, जजेस में से अगर कोई कमेंट देना चाहे, काशी भाई, he is one of our, he was our one of our judges, very very accomplished person. काशी भाई प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काशी अहमद है। तो पहले तो मैं इस तरफ से ये बोलूँगा कि सबको बहुत मुबारक हो जो लोग आप लोग विनर बने, एक्चुअली ऑल टॉप 20। कमेंट और फीडबैक है आप लोगों के लिए मेरा, ठीक है ना, एंड रिक्वेस्ट समझ लें इसको, स्पेशली जो आप लोग सब विनर हैं, कि देखें आपको पता है ये कंपटीशन जो था ये नहीं था कि हमने ये जज नहीं किया कि आप जो ना प्रॉम्प्ट कितना अच्छा लिखते हैं, ठीक है ना, दैट वाज नॉट अबाउट दैट कि कितना अच्छा किसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। आप लोगों को, आप जो विनर बने अपनी एबिलिटीज की वजह से अंडर प्रेशर, गिविंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन thinking and structured way to how to approach the problem, solve the problem, and instruct the AI to solve the problem, right? That was the main area we were, and when we were asking the tough question, कि आप किस तरह उसको जवाब देते हैं, किस तरह आपकी थिंकिंग है। तो kudos to all of you, ये जो एबिलिटी है जो आपने डेमोन्स्ट्रेट की, दैट इज योर की एडवांटेज। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये, डोंट स्टॉप हेयर। देखिए शकील भाई ने बोला ये जो प्लेटफॉर्म भी है ये आप जैसे ही बच्चों ने बनाया, ठीक है।
सो यू कैन सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। और आप लोग की स्किल सेट, इसकी जो विनिंग है आपकी, वो आपकी टेस्टमेंट है कि आप लोगों के पास वो एबिलिटीज मौजूद हैं कि यू कैन डू आल्सो समथिंग सिमिलर और बेटर। तो मेरा आप लोगों से सबसे स्पेशली आई एम इम्प्रेस्ड विद समर। आई डोंट नो कहाँ से टाइम लेके आते हो, इतना सारी चीजें कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। हम समझते हैं शकील भाई ज्यादा कर रहे हैं, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम तो इतना कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में तुम 48 घंटे काम कर रहे हो दिन में। तो काशी भाई, इसको could you हम please? करने लगे हैं ईटीएल में। ये अभी इस मीटिंग के बाद इब्राहिम समद से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह सबसे ये हम नाहिल से जरूर। और बाकी सबसे हम यही रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि बल्कि मेरी आपके बात के बाद यही बात थी है इन सब के हाँ सामने कि let's work together. The ETL, Empowerment Through Learning, is a non-profit organization, so there is no strings attached monetarily कि अच्छा भाई किसी के पैसे बन जाएंगे, किसी के कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, और नहीं। It's all for Pakistan by Pakistan. और शकील भाई, मैं जो चीज इनको पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से, देखें ये स्किल जो है ना, हम शकील भाई नॉन प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, सही है, हम लोग को काम करते हैं, बट डोंट बी शाय कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरी रिक्वेस्ट ये, आप सोचो अपनी स्किल्स को लेके क्या चीज आप खुद बना सकते हो, क्या चीज वाइप कोड कर सकते हो। कर्सर है, एप्लेट है, क्लाउड कोड है, कोपायलट है, राइट। अपने जो जो पैसे अभी मिलेंगे ना इनाम के, मेरी रिक्वेस्ट ये है उसमें से किसी भी एक टूल की पेड सब्सक्रिप्शन लेना आप लोग, फॉर अ मंथ, फॉर अ 2 मंथ, फॉर अ 3 मंथ। बिलीव मी, एटलीस्ट आप 5 लोग जिनको फंडिंग मिल रही है, spend that money to get the paid subscription for Claude, for Cursor, for Windsurf, for Copilot, whatever you like, ठीक है। एंड अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को लेके कोई प्रोडक्ट बनाओ, एआई का यूज करो। ओके, मैं और प्रोडक्ट बनाने का भी सिंपल सा बताता हूँ। कोई सा बात देख लो प्रोजेक्ट, कोई सी भी प्रोडक्ट जो बहुत अच्छी मार्केट में चल रही है, जिसके बहुत सारे कस्टमर है, उसका क्लोन बना लो, सिंपल सा अपना खुद का, विद लिमिटेड फीचर जो चलते हैं, एंड लॉन्च इट। सोशल मीडिया को भर दो, लिंक्डइन भर दो, लॉन्च इट एंड सी if you can get some customer and make some money. This is very doable with your skill set, I'm telling you guys. ठीक है, मैं आप लोग को एक लिंक भेजूंगा, मेरा कजन है दुबई में, ही वाज वर्किंग ऑन द एआई, और आई जस्ट टोल्ड हिम यार तुम अपनी प्रोडक्ट को डालो। ही लॉन्च जस्ट 2 गिटहब प्रोजेक्ट, दो उसने अभी प्रोजेक्ट ओपन सोर्स करके गिटहब पे डाल दें, उधर डाल दो आप लोग। आपके पास कुछ आइडियाज होते हैं, बोलते हैं हमें कुछ बनाना है या हम बनाना चाहते हैं, शकील भाई को रीच आउट करो, हम लोग को रीच आउट करो, वी विल फंड इट, we'll pay the money and figure out the details, but you guys can start building those. We will guide you, coach you and make some money also. मनी, पैसा कमाने में कोई झिझक नहीं है, कोई गुनाह नहीं है वो, ठीक है ना। कि कमर्शियल लगे आप पैसा ज्यादा कमाओगे तो कल को आप कंपनी बना के 4 बंदे एम्प्लॉय कर लोगे। यही शकील भाई का नॉन प्रॉफिट का गोल है, ठीक है ना, किस तरह और बच्चों ग्रो करें, इकोसिस्टम बढ़ाएं। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है आप पांचों से, ठीक है, स्पेशली प्लीज प्रॉमिस मी स्पेंड अ मंथली, 1 मंथ के लिए कर्सर या क्लाउड कोड को लो और कोई 4 प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में डाल दो, वेबसाइट बना के। एनीवे शकील भाई, जय, मेरी मोटिवेशनल स्पीच 3 लोगों से, बाकी आपके ऊपर। No, thank you, thank you. We need that. We all need motivation. Jazakumullah khairan. किसी और ऑडियंस में से जजेस का, we have couple of other judges. किसी ने अगर कोई कमेंट, कोई एडवाइस, कोई रिमाइंडर? Going once, twice, thrice. आई थिंक जजेस में से हैं मोहसिन है, मोहसिन आपका Sir कोई कमेंट? Masood, Sir अकबर Masood is भाई भी also हैं। here, जी मसूद भाई, आपका कोई कमेंट? and Sir Akbar too. अस्सलामुअलैकुम। आज तो मैं इन पार्टिसिपेंट्स को सुनने के लिए लॉगिन हुआ था लिसनिंग मोड में, लेकिन आप कहें तो बेसिकली मेरा कमेंट यही हुआ कि एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले इनको जो विनर्स हैं, और फिर साथ में आप सबको भी जो सारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सक्सेसफुल इवेंट। और डेफिनेटली मैं भी यही कहूँगा, काशी भाई ने ऑलरेडी कहा है कि ये स्टार्ट है इनके लिए, एंड नहीं है। बल्कि इससे इसकी शायद कंपटीशन की का पर्पस भी यही था कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि ये फ्यूचर की स्किल है, जो इसको ग्रो करना है, जो इसको अच्छा यूज़ करेगा वही आगे बढ़ सकेगा। तो कीप इट अप और इसको इम्प्रूव लेकर के आगे जाएं, जिस तरह काशी भाई ने कहा है कि इसको प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू मोहसिन। और मसूद मैं भाई आपको आपके भी ऐड कर लूंगा, हाँ बिल्कुल।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि जितने भी आप ये पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह से एवरीबडी ऑल 2600 ऑफ देम प्लस सब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टॉप 20 वालों को उनको भी मुबारकबाद। एंड देन फिर वो जो टॉप 5 हैं ये मनाहिल इब्राहिम बाकी लोग जो हैं सब ने बहुत ही इम्प्रेसिव काम किया। मैं तो आप लोगों से इंस्पायर्ड हूँ माशाल्लाह से। इतना टैलेंट शकील भाई इरफान भाई और ईटीएल वालों ने गैदर किया और लाइबा और मुताहिर और हमना और बाकी जितने भी मॉडरेटर्स थे। मसूद भाई जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बुक ऑथर हैं बाय द वे। ही इज वेरी वेरी accomplished person we have on the call today, मसूद भाई। अरे Just to थैंक यू। let people know. लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ तो आई एम सो इम्प्रेस्ड और माशाल्लाह से सो मच टैलेंट। तो मैं आपसे वही रीइटरेट करूंगा जो बात शकील भाई ने काशिफ भाई ने कही थी कि आप इस टैलेंट को यूज करके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में शॉर्ट टाइम विंडो में कुछ डेवलप करें, मार्केट में लाएं, फंडिंग लें और हम लोग सबसे कांटेक्ट करें। क्योंकि ये जो आपकी स्किल है ना इसका टाइम फ्रेम भी होता है, टाइम विंडो भी होता है, इसमें आपको करनी होती है। और आपकी स्किल्स माशाल्लाह से आर बेटर देन मोस्ट पीपल इन द होल वर्ल्ड। तो इसको ज़रूर यूज़ करें। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस और वेरी वेल डन शकील भाई और आपकी पूरी टीम को। जी जी जज़ाकल्लाह। ये हमारी ईटीएल की टीम लाइबा मुताहिर हमना और ऑफ कोर्स हमारे इरफान भाई वो इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ ईटीएल। सुबह शाम उनकी फिक्र जो है ईटीएल है। तो ऑल द कंग्रेचुलेशंस टू देम। किसी और का कोई कमेंट बिफोर वी से वन लास्ट थिंग अबाउट ईटीएल? जी इब्राहिम। हाँ यस सर, मैं ऐड ही करना चाहता था सर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल यूथ अवार्ड के लिए भी सर मैं नॉमिनेटेड हूँ पूरे पाकिस्तान में। और सर काशी के लिए मैं ऐसा कहना चाहता था कि मेरे ओवर 45 प्रोजेक्ट्स है गिटहब पे और मैं गिटहब का डेवलपर बैच भी हूँ जो सिर्फ 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में मिला हुआ है। और इसके अलावा सर गिटहब क्रिसमस का हुआ था जो हमारे गवर्नर हाउस का इवेंट हुआ था GIIC। तो उसमें मैं माशाल्लाह टॉप लाया था। मैंने AI ड्रिवन डेवलपमेंट बुक बनाई थी। तो ओवरऑल पूरे दुनिया में मेरा गिटहब का जो प्रोजेक्ट था पूरा सिलेक्ट हुआ था। थैंक यू। वेरी नाइस। इब्राहिम बस रेडी रहो, हम आपके पास आ रहे हैं इंशाल्लाह। वी विल बी वर्किंग विद यू टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह। थैंक यू इब्राहिम सर। आपने जिया खान वाले के सर जिया के कोर्सेज में भी ट्रेनिंग ली है PIAC में? सर मैं PIAC में सर कासिम का मैं असिस्टेंट टीचर हूँ और मैं सर सिया के लिए थोड़ी सा बातचीत भी होती रहती है और मैं उनके लिए सही प्रोजेक्ट्स है, भी हेल्प करता हूँ सर। सही है, सही है। मैं सर जिया के पहले बैच का 2000 का स्टूडेंट हूँ। वाह माशाल्लाह। Okay, ji. So last thing, I know we are getting close to the end of the session today. I just wanted you guys to be aware that we have etlonline.org is the name of our website, Empowerment Through Learning. इसमें just quickly a couple of things I wanted to show you कि ये finally year project advisory हम देते हैं university students को। The idea is कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट देम विद द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री कनेक्टिंग विद एकेडेमिया एंड एलिवेटिंग द डिस्कोर्स कि किस तरह हम सबको पाकिस्तान में पाकिस्तान के यूथ को हम इम्प्रूव कर सकें। ओपन सोर्स के हवाले से दैट्स वेयर आई वाज सेइंग इब्राहिम समद कि हम इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग विद यू। वी हैव सम कोर्सेज and we have some plans, तो maybe you can be and maybe your friends we all can work together किसको कैसे नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान लेवल पे लेके जाएं। तो हम और 5,000 इब्राहिम समद कैसे लेके आ सकें, मिनाहिल और इमरान और ये सारे जो आप टॉप 5 हैं, how we can have another 5,000 of you inshallah in Pakistan in coming months and year. करियर हेल्प हम देते हैं। सो करियर हेल्प के हवाले से वी हैव दिस यूट्यूब चैनल जिस पे बहुत सारी हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं, एंटरप्रेन्योर से लेके एजाइल मेथोडोलॉजी से लेके डेटा साइंस और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च। ये एक्चुअली मेरे एडवाइज़र हैं, आई डिड PhD अंडर हिम, Dr. Victor. He's a world-renowned researcher. तो alhamdulillah, when I told him about ETL, he said, "अच्छा मुझे बताओ, Shakil, when should I come and present?" That was his prompt response to my explanation of ETL. This is how ETL, alhamdulillah, is getting help from so many people. So cyber and Irfan bhai ki UI UX. This is Kamran is one of the celebrities from Pakistan in open source world, and this is his playlist. So alhamdulillah, we have some really nice
और ये हमारे काशी भाई who is on the call, AIML. So a lot of people are helping ETL to help Pakistan's youth. So I want all of you, those who are on the call, please share, first of all, benefit from this information and share with your friends and colleagues. And then the other thing is I want all of you to please follow us on LinkedIn. We have, mashallah, 2,100 plus followers, and we'll be hopefully in next 1 year, 10,000 plus. So a lot can be shared with Pakistan, with Pakistan's youth through our social media. So when you join us, you're joining a pool of big, kind of set of very accomplished people, inshallah. And the other thing that I want to show you, very last thing, there are a bunch of other things, but this is another platform, guys, that alhamdulillah built in Pakistan, made in Pakistan by Pakistan, again, mostly students. You will, when you see spark.etlonline.org, you'll be really impressed, to say the least, inshallah, because I have shown it to some of the people here in the US, and they are like, wow, has it really been built in Pakistan? That was their question many times. So मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बहुत कैपेबिलिटीज हैं, और जैसे काशी भाई ने कहा, जैसे इरफान भाई ने कहा, मसूद भाई ने, मोहसिन भाई ने, कि लेट्स मेक यूज ऑफ दिस टैलेंट, लेट्स ट्राई टू convert into some benefit to yourself and to the nation, inshallah. So with that, may Allah put barakah in all the work that we do, and we again congratulate our 5 winners in top 20 as well. And stay tuned. Please join us. Please join ETL movement, empowerment through learning. Let's empower all the youth of Pakistan. Let's make Pakistan as the world leader in technology, world leader in thought and innovation, inshallah. And let's have a brighter, better future of Pakistan. So with that, Laiba, back to you. Thank you so much, sir. So I think और पार्टिसिपेंट से फीडबैक ले लेते हैं, अदर देन बाकी जो ऑडियंस है हमारी, किसी का कोई कमेंट है, बाकी जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑल्दो ठीक है दे आर नॉट इन टॉप 5 और टॉप 20, बट स्टिल इफ एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ फीडबैक और एनीथिंग, तो जस्ट प्लीज फ्लोर इज ओपन फॉर यू. तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ. एनीवन? अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद की बेगम हूँ. मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया ख़ान है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारा एफर्ट जाता है इन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये टाइम का बहुत अच्छा यूज़ है, और यूथ को एंगेज करने के लिए, स्पेशली उनको प्रमोट करने के लिए, ये बहुत बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया है प्रोजेक्ट, और इस तरह का आगे करते रहें. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. Thank you, Bobby. Jazakumullah for your kind comments. Appreciate it. Ji, Laiba, I think we can wrap it up. Yes, I think we can. Chale. So all the best, or good luck, winners. We will see more of your wins in the future, inshallah. Or as I said, let's join the movement. Please help Pakistan grow. ETL is one of the very few non-profit NGO initiatives in Pakistan. और ये काशी भाई को बड़ा पसंद आया था. मैं इसको कहता हूँ TSJ, टेक्नोलॉजी सदका जारिया. तो इस how we can give back to Pakistan and uplift Pakistan through giving back our technologies, skills, our knowledge, our expertise, and inshallah make Pakistan really great, inshallah. So with that, thank you so much. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.